दिखाई दे रहा? तो पहले we'll start this topic called inertial frame and non-inertial frame. Okay? Lamis theorem we have completed. We'll do some more problems. We'll do some more problems in Lamis theorem after completing this. Okay. Now this topic is called inertial and non-inertial frames. Inertial and non-inertial frames. Now, what do you mean by inertial frames? The frames where Newton's laws are applicable are called inertial frames. What are Newton's laws? First law, second law, and third law. F equals to ma is second law for rigid bodies, and third law is every action has equal and opposite reaction. Clear? Now, which frames are inertial frames? Any frame that is at rest or moving with constant velocity is inertial frame. For example, if you have an elevator, or if you are standing on ground, that is considered as an inertial frame because you are at rest. Okay. Now, suppose you are in an elevator and that elevator is also at rest. You are inside the elevator. Then that frame of reference is also inertial frame. Even if elevator is moving with constant speed. What do you mean by constant speed? Neither the direction nor the magnitude of the velocity is changing. Then still that lift is inertial frame. And Newton's laws are applicable and you will get the right answers. What I am trying to say you will understand after I discuss an example. Now first see, you have this elevator. Now there are two people here. One person is standing inside the elevator, green color, and one white color. He is standing outside the elevator on the ground. Now, suppose this lift is either at rest or moving with constant velocity. Constant velocity. What do you mean by constant velocity? डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा और मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा. मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा. डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा. मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा. डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा. मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा. तो ये जो इनसाइड द लिफ्ट है फ्रेम वो भी इनर्शियल है, ऑन द ग्राउंड भी इनर्शियल है, दोनों इनर्शियल है इन दिस केस. Now let us do the problem. The problem is this: there is a block of mass m kept on a weighing machine. W is what? Weighing machine. Weighing machine will show you the weight. कितने न्यूटन है उसका weight बता देता weighing machine. समझ में आई बात? Now what will be the reading by weighing machine? Let us try to see. Now it doesn't matter if the observer is outside or inside. With respect to that, both the observers, with respect to the observer inside and with respect to the observer outside. With respect to both, acceleration तो जीरो है. किसका? ब्लॉक का acceleration जीरो है. अब न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई कर दिया मैं. F net equals to ma. दिखाई दे रहा? F net equals to ma. F net equals to ma. Now what are the forces acting on this block? एक उसका weight नीचे ऐड कर रहा है और normal reaction ऊपर ऐड कर रहा है. Right? So I have drawn the free body diagram here. Normal reaction is in the upward direction, mg is in the downward direction. Now its acceleration is zero. Do you agree? Acceleration is zero. So what is F net? Mg minus n or n minus mg. Let us take n minus mg. ऊपर का पॉजिटिव लेंगे, नीचे का नेगेटिव. n minus mg equals to zero. Why zero? a zero है. यहाँ पे a क्या है? Zero है. ठीक है. तो n equal to mg आएगा. So we got n equals to mg. What does that mean? Normal reaction exerted by the weighing machine on man is mg. Normal reaction exerted by weighing machine on the man is mg. By Newton's third law,
the normal reaction exerted by the block on, block बोला मैं, अभी क्या बोला? See, the normal reaction exerted by weighing machine on the block is mg. यहाँ पे आ गया देखो mg, right? By Newton's third law, normal reaction exerted by the block on the weighing machine is also mg. अगर ये mg exert करेगा, अगर weighing machine block पे mg exert करेगा, तो ब्लॉक भी weighing machine पे mg exert करेगा, तो रीडिंग क्या आएगी? mg. म्यूट कर दो. समझ गए? क्लियर? समझ में आया? Okay. So what will the weighing machine show? It will show weight equals to mg. Now we did problem with respect to ground as well as with respect to the man inside the elevator. Both are giving same result and the process of solving is also same. Why? Because both are inertial frames. We have applied what? We have applied what? Newton's laws and we got the answer. तो weighing machine क्या है? Sorry, weighing machine कितना रीडिंग बताएगा? mg बताएगा. Clear? So अगर लिफ्ट रेस्ट पे है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रहा लिफ्ट, it doesn't matter ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, if it is moving with constant velocity, weight will actually be equal to the weight shown by the machine will be equal to the actual weight, or we can say that apparent weight shown by the weighing machine will be equal to the real weight. apparent weight और real weight equal रहता, apparent weight और real weight equal रहता. समझ गए? अब suppose lift is accelerating upwards, lift is accelerating upwards. कब accelerate करता lift upward बोलो? When it is starting from rest, going in the upward direction, or when it is stopping while going in the downward direction. दोनों केसेस में एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ रहेगी. समझ में आई बात? देखो जब ऊपर जाते वक्त स्टार्ट कर रहा, ऊपर जाते वक्त जब स्टार्ट कर रहा, when it is starting to move upwards, acceleration is upwards. When it is starting to move downwards, acceleration will be downwards. Agreed? But when it is stopping while going up, it is stopping while going up, then acceleration is downwards. When it is stopping while going down, then it will be upwards. Acceleration will be upwards. Any doubt? Clear? तो acceleration upward कब रहता? दो केसेस में. लिफ्ट जब, हाँ tell me. See, acceleration of the lift will be upward in two cases. One, while the lift is starting, you went into the lift in the ground floor, and you press some fifth floor or sixth floor. Okay, so in the starting, acceleration will be upward. Before stopping on the fifth floor or sixth floor, just before stopping, acceleration will be downwards. Clear? देखो पहले वेलोसिटी इंक्रीज हो रही, इसलिए एक्सेलरेशन अपवर्ड है. रुकते वक्त ऊपर जाने के टाइम पे, while the lift is going up, before stopping, acceleration will be down. Agreed? But if you are going from fifth floor to ground floor, in the beginning, acceleration will be downwards. Just before stopping, acceleration will be upwards. That's what I'm saying. Clear? Excuse me, sir. You are muted, sir. Okay. Now, is it audible? Yes, sir. Okay, fine. Now, this lift is going upward with some acceleration. That means it is not going with constant speed. It is going with some acceleration upward. कुछ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड जा रहा, some acceleration है. ठीक है, समझ में आई बात? Now let us see what will be the apparent weight. Will the apparent weight will the apparent weight be more or less? It will be more because it is accelerating upward. Common sense. Okay. Now let us see. I am taking the block. I am drawing the free body diagram. Okay. Now I am doing the problem with respect to ground. That means I am using
this frame of reference. I'm standing here and doing. I'm standing on ground and doing the problem. Now, if I am looking at the block is moving upright with acceleration with respect to this person. Okay, समझ में आई बात? तो देखो. Now, if the acceleration A is upwards and upward force is N, downward force is mg, because mg is downward, N is upward, and A is this. If I apply second law, F net equals to ma. So the force in the direction of acceleration must be positive. So N positive ले लिया, mg negative ले लिया, equals to ma. So what is N equal to? mg goes this side, it will become mg plus ma. So it is m into g plus a, right? Normal reaction is m into g plus a. That means normal reaction exerted by weighing machine on the block is m into g plus a. By Newton's third law, normal reaction exerted by the block on the weighing machine is also m into g plus a. Equal and opposite reaction करता ना. So what will the weighing machine read? Yes, sir. m into g plus a. What will be the reading on the weighing machine? It will be m into g plus a. समझ में आई बात? Now if I do this problem with non-inertial frame. Now this frame is non-inertial frame with respect to this person. ये non-inertial frame है, right? But if I do the problem with respect to this frame, इसका acceleration तो zero आएगा, क्योंकि with respect to him he is at rest, that block is at rest. With respect to this person, this block is at rest. तो normal reaction कितना आएगा? mg ही आएगा. Normal reaction mg ही आएगा, which is wrong. Why it is wrong? Because this frame is accelerating, and accelerating frame is what? Accelerating frame is what? A non-inertial frame. In non-inertial frame, Newton's laws are not applicable. In non-inertial frames, Newton's laws are not applicable. समझ गए? इसका मतलब I cannot simply apply Newton's laws in non-inertial frame. I can apply Newton's laws in inertial frame. That means with respect to this person, I can apply Newton's laws. But with respect to this person, I cannot apply Newton's laws. But you can still apply Newton's laws in non-inertial frame if you consider something. If you consider something. What we need to consider here to apply Newton's laws? We need to consider a force called pseudo force. We need to consider a force called pseudo force. समझ गए? Pseudo force consider करने के बाद आप Newton's laws apply कर सकते. अब pseudo forces क्या है मैं बताता हूँ आपको. Pseudo force क्या है? I will tell you. Suppose there is a bus. Suppose you have a bus like this. Okay? Suppose you have a bus. Now this bus is at rest. Suppose this bus is at rest. Then the bus will become an inertial frame. Do you agree? Suppose this bus is moving with constant velocity. What do you mean by constant velocity? Neither the direction of velocity is changing nor the magnitude is changing, nor the magnitude is changing. Still it is inertial frame. Okay. Suppose it is not at rest or in uniform velocity or constant velocity. Suppose ये neither rest पे है nor constant velocity से जा रहा. Suppose this bus is accelerating. Now the best example is, suppose this person is standing in the bus. Suddenly the bus driver applies the brake. Suddenly the bus driver applies the brake. समझ गए? So this is the velocity, direction of velocity. और ब्रेक अप्लाई कर दिया तो एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में आएगा? बस का एक्सेलरेशन पीछे आएगा. जब ब्रेक मार दिया तो एक्सेलरेशन किधर आएगा? पीछे आएगा ना. समझ गए? पीछे आता. So this is the front of the bus. This is the rear of the bus. Okay. Now suppose the driver applies the brake, acceleration will be in the backward direction. Now what will happen to the person inside? He will fall in the forward direction. So there will be a force in the forward direction. Do you agree? Yes, sir. ब्रेक मारा तो आदमी किधर गिरता? सामने गिरता. बस सामने की तरफ गिर जाता. ठीक है. So there is some force, some mysterious force. See, suppose ये आदमी को पता नहीं कि वो बस में. समझ गए? This man doesn't know that he is inside the bus.
अंदर रूम के जैसा बना दिया बस को, समझे? आदमी बेहोश था, उठ गया, बस में उठाया उसको, उसको पता नहीं कि वो उस बस में है, और बस में सडनली ब्रेक मार दिए तो आदमी गिर जाता, बट उसको मालूम नहीं होता कि कैसे गिरा. Some mysterious force is pushing him. He will imagine that. Suppose is not in the bus, then he will think that some mysterious force is pushing him. Okay, in the forward direction, and there is nobody pushing him, right? There is no normal reaction. There is no tension. ना तो उसको किसी ने धक्का दिया, ना तो उसको किसी ने रोप लगा के खींचा. तो there is no tension. There is no normal reaction. Somehow he is falling. Okay. Now suppose the same bus. Suppose it is at rest initially. Suppose the same bus is at rest initially. It is at rest and initially at rest पे है. Suddenly जो है ना, this driver is suddenly accelerating the bus. Driver is suddenly accelerating the bus. So what will be the direction of force? It will be backward. Backward. The direction of force will be backward. Correct? Now suppose this man has mass m. This man has mass m. इसका mass m है. Man का mass क्या है? m है. तो see, for the man inside, this force is somehow coming from nowhere. समझ गए? That's why that force is called a pseudo force. It's called a pseudo force. Force acting on a body in non-inertial frame. हाँ, non-inertial frame. Non-inertial frame का दूसरा नाम क्या है? Non-inertial frame का दूसरा नाम क्या है? अगर मैं नाम दूं तो we can call it accelerating frame, right? See, which frames are non-inertial frames? Accelerating frames, right? अगर acceleration zero नहीं है, non-zero है, तभी non-inertial frame होगा. So the frames which are accelerating are called non-inertial frame. So I can call non-inertial frame as accelerating frame also. Accelerating frame also. समझ गए? Accelerating frame. Force acting on a body in non-inertial frame. Okay, this force acting on a body in non-inertial frame is called a pseudo force. Pseudo force, or there is one more name, or pseudo force का एक और नाम है fictitious force. फिक्शन मतलब मालूम ना, जो रियल नहीं है उसको फिक्शन बोलते हैं. तो यहाँ पे आदमी पे जो फोर्स लगा वो कोई डायरेक्ट कांटेक्ट से नहीं लगा, कोई रोप नहीं था, ना कोई नॉर्मल रिएक्शन था. इट केम आउट ऑफ नोवेयर अकॉर्डिंग टू हिम. So that's why that force is called pseudo force or fictitious force. Okay. Now this, what will be the pseudo force? The pseudo force is always the pseudo force. Pseudo force F bar is always equal to minus MA. So what do you mean by minus MA? MA bar, where M is the mass of body and A is the acceleration of किसका? Of the frame. ये एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम है. देखो बस का एक्सेलरेशन अगर a है तो f कितना होगा बोलो? ये f कितना होगा? माइनस MA बार. समझ में आई बात? इसलिए उसका एरो ऑपोजिट है a के. दिखाई दिया? यहाँ पे f की वैल्यू कितनी होगी? माइनस MA बार. माइनस MA बार. आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
तो बस का एक्सेलरेशन फॉरवर्ड होगा तो सूडो फोर्स पीछे की तरफ आएगा, बस का एक्सेलरेशन बैकवर्ड होगा तो सूडो फोर्स आगे की तरफ आएगा. समझ में आया? समझ गए? That's why when brake is applied on the bus, the force on you is in the forward direction, and if the bus suddenly starts accelerating in the forward direction, the pseudo force on you will be in the backward direction. समझ में आई ना बात? Now let us come back to the problem of this elevator, and let us do the problem with respect to man inside the frame. Let us do the problem with respect to man inside the frame, and let us check if the answer is same or not after considering the pseudo force. So I'm pasting the diagram here. Now, is the frame with respect to this green man inertial or non-inertial? Non-inertial. Okay, so it is a non-inertial frame. Non-inertial frame. Now, to apply Newton's laws, to apply, bolo, to apply Newton's laws of motion, we need to consider pseudo force. समझ में आया? अब बोलो, अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया ये ब्लॉक का, if I draw the free body diagram of this block, what forces should I mention or consider? बोलो. नॉर्मल रिएक्शन तो ऊपर जाएगा. अच्छा, वेट होगा पहले नीचे mg, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर n, सूडो फोर्स किधर होगा? सूडो फोर्स, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो सूडो फोर्स होगा नीचे. सूडो फोर्स नीचे होगा तो आई एम राइटिंग सूडो फोर्स ऑन द साइड हियर, एंड व्हाट विल बी सूडो फोर्स इक्वल टू माइनस एम ए बार, बट बिकॉज आई हैव ड्रॉन द एरो ड्रॉ कर दिया मैंने तो मैंने एम ए ले लिया. एरो में डायरेक्शन है, देखो ए का डायरेक्शन ऊपर है तो एम ए नीचे आएगा. ठीक है, समझ में आया? और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो. वाई जीरो? बिकॉज विथ रेस्पेक्ट टू दैट मैन तो बाजू रेस्ट पे है ना. सी, when we did the problem with respect to man who is standing outside, अगर with respect to ये man देखा था हमने तो फोर्सेस क्या लिए थे? n लिया था, mg लिया था और एक्सेलरेशन a लिया था. ठीक है, तो n minus mg was equal to ma, and we solved the problem and we got n is equal to m into g plus a. This time with respect to this man it is at rest, तो a जीरो लेंगे. तो ऊपर एक फोर्स है, नीचे दो फोर्सेस है, नीचे वेट है और सूडो फोर्स भी नीचे है. अब न्यूटन सेकंड लॉ फिर अप्लाई करेंगे. एफ नेट इक्वल्स टू एम ए, एफ नेट इक्वल्स टू एम ए. तो एफ नेट क्या होगा इसका? ऊपर का सारा पॉजिटिव लो, नीचे का सारा नेगेटिव लो. बोलो ऊपर का क्या है? एन माइनस एम जी माइनस एम ए इक्वल्स टू, ये जीरो है ना, ये जीरो है तो इक्वल टू जीरो. डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दिस एंड दैट. ये तो एफ नेट इज इक्वल टू एम ए अलग इक्वेशन है, अपने प्रॉब्लम में ए अलग है. ठीक है, तो ये कंसीडर कर दिया. तो व्हाट इज द कंक्लूजन? n equals to m into g plus a. We got the same answer. We got the same answer after considering the pseudo force. If we don't consider the pseudo force, we will not get the right answer. We will not get the right answer. Wrong answer. Clear? Okay, let us do the problem again. For lift accelerating downwards. Lift accelerating downwards. So let me take this thing. तो ये उल्टा कर दो. Lift is accelerating downwards, so इसका acceleration नीचे लिख दिया. ठीक है. Now we will do again with both the frames of references, with respect to ground and with respect to ground and with respect to elevator. समझ गए? तो see,
with respect to ground. ठीक है. Now with respect to ground, if you look at the block, suppose ये block को देखा आपने, तो what is the acceleration of the block? A नीचे है, Onwards. क्लियर. वेट नीचे एक्ट कर रहा है कितना, mg, और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर. ठीक है. दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. डू यू अग्री? तो सेकेंड लॉ अप्लाई करो. एफ नेट इक्वल्स टू एम ए. तो एफ नेट क्या होगा इस पे बोलो. ए के साथ का पॉजिटिव लो, ए के अगेंस्ट का नेगेटिव. ए के साथ कौन है यहाँ पे? mg minus n. हाँ, mg माइनस एन इक्वल्स टू mg माइनस बोलो mg माइनस एन इक्वल्स टू एम ए. सी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख दिया ना वहां पे एक्सेलरेशन है. तो एन mg माइनस एन इक्वल टू एम ए. तो व्हाट इज एन इक्वल टू एम जी माइनस ए. क्लियर. सो ये आ गया आपका नॉर्मल रिएक्शन. सो कंक्लूजन क्या है? इफ weighing machine exerts m into g minus a on the block, then the block, yeah, bolo, then the block also exerts m into g minus a on the weighing machine. समझ में आया? So what is the reading? m into g minus a. समझ में आया? क्लियर. अच्छा, let us do this problem with respect to man inside or with respect. सही रीडिंग नहीं आती, अपेरेंट रीडिंग आती. तो नहीं, लिफ्ट में अगर वेइंग मशीन लेके आप ठहरे उस पे अपेरेंट वेट रहता, रियल नहीं रहता, अपेरेंट वेट देखो, वेट कांस्टेंट नहीं रहता आपका, समझे? वेट चेंजेस एवरीवेयर. योर मास विल रिमेन कांस्टेंट बट वेट विल बी डिफरेंट. समझ में आई बात? अगर मून पे गए तो वेट अलग रहता, स्पेस में गए तो वेट जीरो रहता. स्पेस मतलब इन अ सैटेलाइट. लिफ्ट ऊपर जा रही तो वेट ज्यादा बताता, लिफ्ट नीचे जा रही तो वेट कम बताता. ऊपर जा रही मतलब ऊपर एक्सेलरेट कर रही, तो लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट कर रही तो वेट कम रहता. अपेरेंट वेट बोलते हैं उसको. क्या बोलते हैं? अपेरेंट वेट. फोर्स ऐड होता. वेट इज अ फोर्स. सी मास इज अ डिफरेंट थिंग, वेट इज अ डिफरेंट थिंग. आप लोग जब वेट देखते हैं, अगर बताया 50 kg बोल के, तो आपका वेट बता रहा, मास नहीं बता रहा. इसलिए उस पर लिखा हुआ रहता 80 kg वेट. kg नहीं रहता, kg वेट. एक्चुअली इट इज इक्वल टू 800 न्यूटन अप्रोक्सीमेटली. समझ में आई बात? आपको मास देखना है तो सिर्फ कॉमन बैलेंस में देख सकते हैं, वेइंग मशीन में नहीं देख सकते मास. कॉमन बैलेंस मतलब एक साइड वेट रहता है, एक साइड जो भी है, समझ गए? कॉमन बैलेंस. वेइंग मशीन पे जो है ना, कभी भी मास नहीं देख सकते, हमेशा वेट ही बताता. वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास रहता हर जगह. किस पे? मगर आप 1 kg लेके 1 kg राइस अगर आपने मेजर किया अर्थ पे, कॉमन बैलेंस पे,
और मून पे मेजर किया तो उतना ही आएगा रईस आपको, समझ गए, कॉमन बैलेंस पे। मगर अगर वेइंग मशीन ले गए आप, अर्थ पे आपने 1 kg मेजर किया और मून पे मेजर किया तो मून पे 1/6 अमाउंट ही आएगा आपको, समझ में आई बात? क्योंकि कॉमन बैलेंस तो इधर जितना खींच रहा उधर भी उतना ही खींच रहा है ना। हाँ, मून पे अलग ग्रेविटी रहती, मगर 1 kg अगर हल्का हो गया तो राइस भी हल्का हो जाता ना, तो कॉमन बैलेंस तो बराबर बताता, समझ में आ? कॉमन बैलेंस का, अगर कॉमन बैलेंस पे 1 kg आप कौन से भी प्लैनेट पे मेजर करो तो राइस उतना ही आएगा आपको। कॉमन बैलेंस पे 1 kg आता, मगर वेट अगर करे तो कम आता वहां पे, समझ गए? अगर आप स्प्रिंग स्प्रिंग का लेके गए वेइंग मशीन, समझ गए? क्लियर? ओके। अच्छा ये देखो, विथ रेस्पेक्ट टू द with respect to what? Inside नहीं, with respect to the elevator. Man inside the elevator. With respect to the elevator or with respect to the observer inside elevator, समझ गए? Respect to the observer inside elevator, समझ गए? Inside elevator. Now, which frame is this? Inertial frame. Non-inertial. Why non-inertial? Because it is accelerating. समझ में आया? Sir, हाँ, can we say that with respect to the observer, it is inertial frame? no. This frame is accelerating. Can you see? Yes, sir. That means the person is inside a frame which is accelerating. समझ में आया? और ऑब्जर्वर को कैसा पता चलेगा whether he is in inertial frame or non-inertial frame? नहीं, how will the observer get the feeling that whether he is in inertial frame or non-inertial frame? He will feel pseudo force. He will feel pseudo force. अगर वो inertial frame में है तो उसका जो weight normal time पे रहता उतना ही रहता उसका weight, समझ गए? या नहीं तो he will be able to be normal. He will not feel any pseudo force. But if he is in non-inertial frame, then he will feel that. What he will feel? Pseudo force. समझ गए? तो अगर लिफ्ट रेस्ट पे है तो pseudo force फील नहीं करेगा ऑब्जर्वर, अगर लिफ्ट एक्सेलरेट कर रहा है तो pseudo force फील करेगा, समझ गए? That means how to make sense of whether you are in pseudo inertial frame or non-inertial frame, समझ गए? इस ये फोर्सेस को जी फोर्सेस भी बोलते हैं कभी, जी फोर्सेस। मतलब फॉर एग्जांपल ये जो छोटे छोटे एलिवेटर में रहते हैं वो तो कम रहते हैं फोर्सेस, बट अगर बहुत ही ज्यादा है एक्सेलरेशन, फॉर एग्जांपल जेट प्लेन और इफ यू सिट इनसाइड रॉकेट, then it will be very high, those forces will be very high. Actually normal people cannot withstand that forces, उसके लिए ट्रेनिंग होना पड़ता और उसके लिए फिट होना पड़ता आदमी, समझ गए? मतलब कोई भी रोड पे चलते आदमी को बिठा के जो है ना स्पेस में नहीं भेज सकते आप, उसको पहले ट्रेनिंग करना, टेस्ट करना, समझ गए? मतलब वेदर विल रिमेन कॉन्शियस आफ्टर एक्सपीरियंसिंग दोस फोर्सेस और नॉट, समझ गए? उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है नहीं है, ये सब टेस्ट करना पड़ता, ठीक है? एनीवे, नाउ टेल मी, दिस इज नॉन इनर्शियल फ्रेम, सो वी हैव टू कंसीडर सूडो फोर्सेस, समझ गए? तो सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे, तो सेकेंड लॉ क्या बोलता बोलो? एफ नेट इक्वल्स टू एम ए, तो एफ नेट क्या है? एफ नेट क्या है बोलो? अच्छा पहले डायग्राम उतार लो ये इसका, फ्री बॉडी डायग्राम। सो टेल मी व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग? नॉर्मल रिएक्शन, पहले वेट लिख लो नीचे, mg, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, और सूडो फोर्स भी कंसीडर करना चाहिए बिकॉज इट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम, राइट? तो सूडो फोर्स किधर रहता बोलो? ऊपर की तरफ, व्हाई? Words.
Why? Opposite to the Because acceleration. body नहीं, frame नीचे जा रहा, तो ma upwards. What is acceleration? Downwards. Acceleration of block क्या है? Zero. Why zero? Because observer से उसके with respect to him तो रेस्ट पे है ना, सेम फ्रेम पे है, तो a equal to 0. तो आप बोलो, अप्लाई करो, एफ नेट क्या है बोलो, ऊपर के पॉजिटिव ले लो, नीचे के नेगेटिव, तो क्या आता? And minus इक्वल्स टू 0. तो व्हाट इज n इक्वल टू? m g minus minus a. So as we got the answer in the with respect to inertial frame, we got the same answer here. We got the same answer here. समझ में आया? क्लियर? yes sir. ओके, समझ में आई ना बात? Yes sir. Yes sir. Now I will ask you questions, but you need not do each and every step now, क्योंकि ऑलरेडी देख लिया है कैसा करना. डायरेक्टली आंसर बोलो, डायरेक्टली आंसर बोलो. अब यहाँ पे एक एलिवेटर है, now inside elevator there is a string, and to that string there is a mass attached. There is a mass attached. वो मास जो है ना m है, ये मास क्या है? m. समझ गए? Now this elevator has zero acceleration. What do you mean by zero acceleration? That is, Yes, its sir. velocity is constant. समझ में आया? Velocity is constant. Now if velocity is constant, is it an inertial frame or non-inertial frame? Inertial frame. Inertial frame. Okay. Now tell me, what will be the tension? What will be the tension? How will you do this? Directly tell me answer क्या है? नॉर्मल रिएक्शन नहीं रहेगा यहाँ पे. क्यों? टच कर रहा है क्या नीचे? ब्लॉक हैंग कर रहा है हवा में. किसके सपोर्ट से हैंग कर रहा? स्ट्रिंग के सपोर्ट से. तो यहाँ पे उसको नीचे गिरने से कौन रोक रहा? स्ट्रिंग रोक रहा, मतलब स्ट्रिंग का टेंशन रोक रहा. नॉर्मल रिएक्शन doesn't exist here. Normal reaction doesn't exist. Now tell me, what will be T equal to? T equals to mg. T equals to mg, क्योंकि वेट mg है नीचे, ऊपर भी फोर्स mg ही होना चाहिए. Why? Its acceleration is zero. Its acceleration is zero. समझ में आया? Okay. Now next question. Same question, but suppose this elevator is moving upward with acceleration a. This elevator is moving upward with acceleration a. So this elevator has acceleration a in the upward direction. A in the upward direction. Now you can do this problem in two frames. You can stand outside and do, or you can stand inside and do. Huh? But it doesn't matter. You tell me directly what will be T. बोलो जल्दी बोलो. Find T. हाँ बोलो बोलो. T equals to m. It doesn't matter. Anyway, you will get the same answer. I told you. If you are outside, you need not consider any pseudo force. But you are inside, you need to consider pseudo force. But either way, you will get the same answer. Now, common sense है. अगर acceleration ऊपर है तो weight बढ़ता कि कम होता?
अरे ऊपर बढ़ता ना, तो टेंशन भी बढ़ना चाहिए। तो क्या है आंसर? एम जी प्लस ए। इवन इफ यू ड्रॉ दैट फ्री बॉडी डायग्राम, you do this problem, you do this problem from frame of reference on ground, frame of reference of ground, or frame of reference of elevator by considering pseudo force, you'll get the same answer. तो क्या आता है आंसर आपका? m इंटू जी प्लस है क्या नहीं? है क्या नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आप लोग गेस कर सकते क्या है? एक्सेलरेशन नीचे रहता सर। हाँ, नीचे रहता, डाउनवर्ड। हाँ सर। तो क्या आता बोलो? जी माइनस है, जी माइनस से आता, माइनस से जी आता। माइनस। क्लियर है क्या नहीं? Now I'll ask you a new question which I could not ask in case of that block kept on the surface, but इधर वो क्वेश्चन बनता। क्या बनता वो मैं बताता हूँ, देखो। Suppose this is not accelerating in vertical direction, suppose this is accelerating in horizontal direction, horizontal direction। अगर A इधर है, अगर ये फ्रेम का एक्सेलरेशन इधर है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो क्या होता बोलो? तो एक्चुअली क्या होता पेंडुलम जैसा हलता है। वेरी गुड, पेंडुलम के जैसा मूव होता है, पेंडुलम के जैसा मूव होता। वेरी गुड। एक्चुअली अगर मैं स्टार्ट करा एक्सेलरेशन ऐसे, तो पेंडुलम के जैसा मूव होता। अगर मैं उसको बैलेंस करके रख दिया सपोज, तो बैलेंस करके कैसा लग सकता है? इस पे ऐसा रखना पड़ता। बैलेंस कैसा कर सकते हैं इसको? ऐसा ऐसा करना पड़ता उसको बैलेंस। देखो ये ऐसा रहता कुछ, समझ में आई बात? Yes, sir. हाँ बोलो बोलो। अगर एक्सेलरेट साइड में हो रहा, तो आपका स्ट्रिंग ये ओरिएंटेशन में नहीं आ जाता? आता नहीं आता? Yes, sir. अपोजिट डायरेक्शन में जाता सर उन्हें। होता, बट मैंने बैलेंस करके रख दिया, बैलेंस करके रख दिया। ऑब्वियसली व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट, यू आर सेइंग दैट इट विल ऑसिलेट, बट सपोज इंस्टेड ऑफ ऑसिलेटिंग आई हैव स्टॉप्ड इट विथ माय हैंड एंड बैलेंस्ड इट। नहीं पकड़ा नहीं, पकड़ के बैलेंस करके छोड़ दिया। समझ में आया? बस से पेंडुलम लटक रहा, बस जो है ना आगे एक्सेलरेट कर रही, तो ऑब्वियसली ऑसिलेट करता। व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट, दैट केस आल्सो विल डिस्कस लेटर, नॉट नाउ। बट सपोज आई बैलेंस इट समहाउ विथ, मतलब ऐसे कि वो हिल नहीं रहा, तो आई कैन नॉट बैलेंस इट वर्टिकली, आई शुड बैलेंस इट एट सम एंगल, आई शुड बैलेंस इट एट सम एंगल। समझ गए? तो अगर बस आगे जा रही, तो वो जो फ्रेम जो रहता है ना, थोड़ा पीछे की तरफ एंगल पे बैलेंस होता हो। समझ में आई बात? तो इट विल बैलेंस इन दिस डायरेक्शन, सम डायरेक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो let us try to find that direction, let us try to find that direction as well as tension भी find करेंगे, tension भी find करेंगे। तो इसका मास क्या है? m है। तो let me take this vertical direction for reference, क्योंकि पहले vertical direction में था, अब vertical से कुछ एंगल बना रहे हैं। ओके, सो टेंशन कौन से डायरेक्शन में रहता? स्ट्रिंग के अलॉन्ग ही रहता टेंशन। सो आई एम ड्राइंग द टेंशन हियर। ठीक है, ये टेंशन है आपका। समझ में आई बात? Yes, yes. ये टेंशन है आपका। थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर लेंगे, एक काम करेंगे। ये टेंशन है, सो आई विल जस्ट इंक्रीज द साइज जस्ट फॉर क्लैरिटी। ठीक है ना? ये टेंशन है, ठीक है, एंड इट विल मेक सम एंगल, इट विल मेक सम And let that angle be alpha, let that angle be, ये एंगल जो है ना अल्फा है। ठीक है, अब व्हाट आई एम क्लेमिंग इज, जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा वही डायरेक्शन में स्ट्रिंग होगा। देखो लास्ट टाइम स्ट्रिंग कैसा था? वर्टिकल था। क्यों? वेट वर्टिकल डायरेक्शन में था और फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्टिकल डायरेक्शन में था, है कि नहीं? इसमें भी वर्टिकल था,
तो यहाँ पे भी वेट वर्टिकल डायरेक्शन में ही है। यहाँ पे mg प्लस है नीचे है, यहाँ पे भी mg प्लस है नीचे है। नेट फोर्स नीचे लग रहा है इस पे नेट फोर्स कहाँ पे लग रहा, देखो देखो भाई नेट फोर्स कहाँ पे लग रहा, एक mg नीचे लग रहा इधर है क्या नहीं, और ma बाजू की तरफ लग रहा। तो आई विल राइट ma here, so this is ma. Now tell me mg and ma what are those, they are forces, right? तो वो वेक्टर्स है ना, mg और ma वेक्टर्स है। इफ आई वांट टू ड्रॉ स्पेसिफिकली, यहाँ पे mg बार लिखना, यहाँ पे ma बार। अच्छा ma इस डायरेक्शन में क्यों लिया मैं, नहीं, मैं क्या बोला स्टार्टिंग में, इस डायरेक्शन में फ्रेम का एक्सेलरेशन होगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा सूडो फोर्स। ब्रेक मारे तो एक्सेलरेशन बस का पीछे है, मगर आप गिरते किधर, आगे। अगर बस निकाल लिया एक्सेलरेशन से, बस का एक्सेलरेशन आगे है, फ्रेम का एक्सेलरेशन आगे है, मगर सूडो फोर्स आप पे लगता पीछे। तो यहाँ पे भी अगर एक्सेलरेशन राइट में है तो उस पे सूडो फोर्स लगेगा लेफ्ट में। तो नेट फोर्स कौन से डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, इसका रिजल्टेंट समझ गए। सो एक्चुअली अगर उससे मैंने मैच किया तो कुछ ऐसा आना चाहिए, तो ए छोटा कर देता हूं मैं जस्ट फॉर मैचिंग, समझ में आया। तो ये एम ए है आपका, समझ गए। तो जिस डायरेक्शन में एफ नेट है, एफ नेट ये देखो, ये एफ नेट है, दिखाई दे रहा, एफ नेट जिस डायरेक्शन में एफ नेट है उसी डायरेक्शन में आपका स्ट्रिंग भी होगा, उसी डायरेक्शन में आपका स्ट्रिंग भी होगा, ठीक है। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा है। रीजन क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल, समझ गए, ये भी अल्फा ही है, समझ गए। बट यू कैन फाइंड अल्फा यूजिंग these वेक्टर्स। नाउ इफ आई लुक एट दिस अल्फा, ऑपोजिट साइड इज ma, दिखाई दे रहा, ये साइड इधर स्लाइड कर दिए तो ऑपोजिट साइड हो जाता, और एडजेसेंट साइड इज mg, एडजेसेंट साइड इज mg। तो ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड को कौन रिलेट करता, बोलो, tan अल्फा। तो tan अल्फा क्या लिखते, बोलो tan अल्फा, बोलो क्या है, tan अल्फा इक्वल्स टू, नहीं ऑपोजिट साइड क्या है, देखो ma बाय mg। तो व्हाट इज अल्फा इक्वल्स टू, क्या है भाई जी, क्या है, tan उधर गया तो क्या होता, कौन सा इनवर्स होता, tan इनवर्स ऑफ a बाय g। समझ गए बात, tan इनवर्स ऑफ a बाय g, ये क्या है, अल्फा है। अल्फा इज द एंगल दैट द स्ट्रिंग मेक्स विथ वर्टिकल, अल्फा इज द एंगल दैट स्ट्रिंग मेक्स विथ वर्टिकल, समझ में आया। अच्छा अभी टेंशन कैसे फाइंड करेंगे, टेंशन कैसे फाइंड करेंगे, बोलो। हाँ एफ नेट इज टेंशन ना, देखो एफ नेट इधर एक्ट कर रहा, टी उसके ऑपोजिट एक्ट कर रहा, दोनों बैलेंस करना ना, अदरवाइज व्हाट विल हैपन, स्ट्रिंग विल एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट, बट दैट विल नॉट हैपन ना। तो बॉल स्ट्रिंग के डायरेक्शन में रेस्ट पे है, राइट। तो टेल मी टी मस्ट बी इक्वल टू f net. Now tell me what is f net, but f net equals to वेक्टर है ना f net, तो दो वेक्टर्स ऐड करना, mg का वेक्टर और ma का वेक्टर ऐड करना, दोनों के बीच में एंगल क्या है, mg और ma में, mg वर्टिकल है और ma हॉरिजॉन्टल है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। तो दो वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री से एंगल, तो दोनों का सम क्या आता, दो वेक्टर्स के बीच में अगर 90 डिग्री से एंगल, तो सम कैसा निकालते हैं वेक्टर्स का, रूट ऑफ, वेरी गुड, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो भाई, देखो आर का फॉर्मूला क्या है, आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta। if theta is cos theta is 90, तो cos theta is
0, तो r क्या हो जाता? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है कि नहीं? तो एफ नेट क्या होता बोलो? रूट ऑफ एम जी होल स्क्वायर प्लस एम ए होल स्क्वायर, एम जी होल स्क्वायर प्लस एम ए होल स्क्वायर। तो एम स्क्वायर कॉमन होके बाहर निकल जाता, तो एफ नेट क्या आता? एफ नेट का मैग्नीट्यूड है, ये खाली मैग्नीट्यूड है तो ये बार मत लिखो। तो एफ नेट क्या आता? एम इंटू रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, समझ गए? विच इज इक्वल टू टी, टी। तो टेंशन क्या है? देयरफॉर टेंशन इक्वल्स टू रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एम, समझ गए? क्या बोले? कुछ डाउट है अम्मा? जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर रहते हैं तो कैसा ऐड करते? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब पैरेलल रहते ए प्लस बी कर दो, जब एंटी पैरेलल रहते ए माइनस बी कर दो, समझ गए? ये जब ना इधर पैरेलल है ना एंटी पैरेलल है ना 90 डिग्रीज कर रहा, तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है आपको, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। So, हाँ बोलो, एनी डाउट? sir, why f net equals to tension? I did not understand. वाई एफ इक्वल्स टू, F net equals to tension. I did not understand, sir. see, if you look at this particle or this mass, is it moving in this direction? It is balanced, right? Yes, sir. It is balanced in this direction. It is not moving. That means acceleration in this direction must be 0. But what does Newton's second law says? F equals to ma. If a is 0, net force must be 0. So what is the net force acting? T is acting in this direction. F net is acting in this direction. Both must balance each other. Otherwise it will accelerate in this direction. But it should not accelerate. That's why T must be equal to F net. Clear? Yes, sir. Okay. Clear na? Yes, Now- sir, dear. Okay, next. Let us look at some other problems. Suppose you have a frictionless, massless pulley. Okay, frictionless, massless pulley. That means उस पुली का कोई मास नहीं है, ना ही उसमें फ्रिक्शन है कुछ, ठीक है? Now you are supporting that pulley from some rigid support. You are supporting that pulley from आयशा, हाँ, इम्पल्स भी करेंगे। मम्मा तो वो तेल डालता खुद बोलो मैगी डाला ले तो। हाँ, ओके। दिल मांग रहा है मालक। ओके, नाउ सी, ठीक है, पहले इम्पल्स कर लेंगे, इसके बाद ये करेंगे, ठीक है? सो I'll put this in next page. So what is impulse? इम्पल्स कैसे डिफाइन करते हैं? देखो यहाँ पे इम्पल्स क्या है? इम्पल्स का सिंबल है जे, इम्पल्स का सिंबल है जे. So impulse is generally represented by J. Now we know that rate of change of momentum is what? According to Newton's second law, बोलो जल्दी बोलो. Rate of फोर्स, बराबर? तो बोलो F इक्वल्स टू कैसा लिखते हैं?
F equals to D by dp by dt, और अगर d by dt of p भी लिख सकते हैं आप, ठीक है. ओके, लेट अस राइट dp by dt, dp bar by dt. So this is your Newton's second law. Newton's second law, ठीक है. Now if I solve this, what will I get? F bar dt equals to dp. Do you agree? वेरिएबल्स को सेपरेट करके, जैसे हमने सॉल्व किया था ना v इज इक्वल टू यू प्लस एटी वाला, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt, a इज इक्वल टू dv बाई dt था, a इक्वल्स टू dv बाई dt था, तो a dt इज इक्वल टू dv लिखा था, फिर दोनों साइड इंटीग्रल लगाया था, राइट. तो यहाँ पे भी इंटीग्रल लगाएंगे दोनों साइड. सो आई विल पुट इंटीग्रल दिस साइड, आई विल पुट इंटीग्रल दिस साइड, ठीक है. आई विल पुट इंटीग्रल दिस साइड. नो मेरे को ये बोलो, यहाँ पे लिमिट्स आएंगे 0 to t, और यहाँ पे लिमिट्स क्या आएंगे? इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम. तो यहाँ पे लिखेंगे p इनिशियल एंड p फाइनल. Final. नहीं कर सकते, इंटीग्रेशन के बगैर फिजिक्स नहीं कर सकते. अगर इंटीग्रेशन नहीं करना है तो एक ही सब्जेक्ट है दुनिया में पढ़ने का, कॉमर्स में भी रहता है इंटीग्रेशन. लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, तेलुगु लिटरेचर, या उर्दू लिटरेचर, या फारसी लिटरेचर, समझ गए, उसमें इंटीग्रेशन नहीं आता. साइंस में हर चीज में आता है इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक्स में भी आता है इंटीग्रेशन, समझ गए. पी फाइनल. और अगर कोई पढ़ा इंटीग्रेशन के बगैर कुछ, तो समझो गलत तरीके से पढ़ा हो, ठीक है. ओके, अच्छा, ये जो लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट साइड, ये जो लेफ्ट साइड है, उधर 1 है, 1 का इंटीग्रल क्या आता? t आता, या x आता, या v आता, मगर यहाँ पे क्या आता? t आता, समझ गए. अगर यहाँ dt रहता तो t आता था, dv रहता था तो v आता था, dx रहता था तो x आता था, dp है तो क्या आता? p आता, समझ गए. और लिमिट्स क्या है इसके? इनिशियल और फाइनल. Final. इनिशियल और फाइनल. तो इनिशियल क्या है? पी आई, फाइनल क्या है? पी एफ, इक्वल्स टू, इधर साइड क्या आया आपको? ये आया इंटीग्रल ऑफ फोर्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. इंटीग्रल ऑफ फोर्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इसको बोलते हैं इम्पल्स. इसको क्या बोलते हैं? इम्पल्स. ये जो है, ये क्या होता? इम्पल्स. And it turns out that impulse is equal to change in momentum. Impulse is equal to change in momentum. तो यहाँ पे impulse equals change in momentum. तो उसको कैसा लिख सकते हैं आप? ऐसा, impulse J अच्छा, ये बोलो, इम्पल्स वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है? वेक्टर है, क्योंकि मोमेंटम भी वेक्टर है. तो p फाइनल माइनस p इनिशियल, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा p बार, डेल्टा p बार, समझ गए. सो इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. समझ में आया? अब इम्पल्स के रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशंस क्या है देखेंगे. नाउ अपने को ये पता है ना, J is equal to this, we know that, right? J bar equals to इंटीग्रल ऑफ f डॉट dt. समझ गए? मतलब f का जो फंक्शन है, अगर उसका इंटीग्रल किया हमने, तो हमको क्या आएगा? इम्पल्स आएगा. तो ग्राफिकली क्या है? व्हाट इज इंटीग्रल ग्राफिकली?
एक्चुअली आई हैव टू कंटिन्यू दिस इंटीग्रेशन आप लोगों के लिए जो अटेंड नहीं किए थे, बट जो लोग ने अटेंड किया, व्हाट इज इंटीग्रेशन दे हैव सीन ऑलरेडी. व्हाट इज इंटीग्रेशन? अगर कोई ग्राफ है ऐसा नॉन लीनियर ग्राफ है, सपोज कोई नॉन लीनियर ग्राफ है ऐसा फंक्शन का, फॉर एग्जांपल ये कौन सा ग्राफ है? फोर्स वर्सेस टाइम. ये कौन सा ग्राफ है? फोर्स वर्सेस टाइम है. पैराबोला नहीं है, कुछ भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता. ये कौन सा ग्राफ है? फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ है. तो इंटीग्रल क्या देता आपको? इंटीग्रल, अच्छा ये 0 to t जरूरी नहीं है, t1 to t2 भी रह सकता, बिकॉज यू कैन फाइंड दिस इंटीग्रल बिटवीन एनी टाइम इंटरवल. सो आई विल राइट t1 to t2, t1 to t2. अगर 0 to t लेता ना तो यहाँ पे p2 p0 लेता था, क्योंकि 0 का हमेशा p0, v का हमेशा v0, ओमेगा हमेशा 0 पे 0 ओमेगा नॉट लेते. तो यहाँ पे हम लोग t1 लेंगे, तो यहाँ पे भी t2 t1 t1 t2. समझ गए? तो ये ग्राफ क्या आता आपका बिटवीन t1 एंड t2? इंटीग्रल इज ऑलवेज एरिया अंडर द ग्राफ. इंटीग्रल इज ऑलवेज एरिया अंडर द ग्राफ. तो आपको ये एरिया आता, समझ गए? ये वाला एरिया आता आपको, ठीक है? So what is this area? What does this area give you? Impulse or change in momentum. समझ में आया? So this area represents और डेल्टा पी. तो ये एरिया आपको जे या डेल्टा पी देगा. समझ में आई बात? ठीक है. अगर एफ कांस्टेंट है, इफ एफ इज कांस्टेंट, इफ f is constant, then ये इंटीग्रल क्या हो जाता बोलो? f बाहर आ जाता, if f is constant, f बाहर आ जाता, तो क्या आता? f इंटू इंटीग्रल ऑफ t1 to t2 dt आता. और यहाँ पे 1 है ना, तो 1 का इंटीग्रल क्या है? t. तो क्या आ जाता? j इज इक्वल टू j इक्वल्स f t2 माइनस t1 आ जाता, विच इज इक्वल टू डेल्टा t, राइट? implies j equals to f into delta t. समझ में आया? अच्छा, what is the application of this? What is the application of this? अगर f constant है, for example if you want to catch a ball with your hand, so you have to change its momentum na, from some momentum to 0. So for catching a ball, suppose a ball is coming with some velocity. For catching a ball, catching की spelling क्या है? A ball of mass m moving with velocity v bar. We need to bring it at rest, right? Bring it to rest, right? तो change in momentum कितना करना पड़ेगा? So change in momentum required. Change in नहीं देखो, change in momentum required कितना है? is mv bar minus m 0 bar. रेस्ट पे आ गया ना?
तो इक्वल टू कितना, एम वी बार. डू यू अग्री? एम वी बार. So we have to change the momentum by mv bar. Do you agree? But change in momentum क्या है? But change in momentum is impulse. Do you agree? अब मेरे को ये बोलो, impulse क्या है? Force into delta t. Force into delta t. Force into delta t. Considering force is constant. Considering f constant. ठीक है. Now what is the conclusion? mv equals to, बोलो, f into delta t. तो what is f equal to? जल्दी बोलो. f equals to mv I delta t. mv by delta t, right? mv by delta t. Now suppose you are catching the ball. What do you prefer? Should the ball apply very high force on your hand or low force on your hand? Low force, right? Low force. So what will you do? You will increase the contact time. समझ गए? When you catch the ball, you will pull the hand backwards, which will increase the contact time. Which will increase the contact time. अगर contact time increase कर दिया तो force कम हो जाएगा, क्योंकि denominator में. समझ गए? That's why when any player catches a ball, he pulls his hand backwards to increase the contact time. There is one more way of increasing the contact time. बोलो, आप लोग बोलो. There is one more way in which we can increase the contact time. बोलो. One way is pulling the hand backwards. Another way is, it doesn't Putting matter. the hand forward. बोलो. बोलो. There is one more way of increasing the contact time. When the ball you are catching, it is stopping now from some velocity. It is stopping. It is coming to rest. What is other way of increasing the contact time? बोलो. बेसबॉल में क्या करते? बेसबॉल कैसा कैच करते? ग्लव्स से कैच करते ना. तो ग्लव्स क्या रहता? ग्लव्स में पैडिंग रहती. तो बॉल जब आके रुकता हाथ पे, सडनली नहीं रुकता, थोड़ा टाइम रहता वो पैडिंग दबने के लिए. समझ गए? सो यू कैन यूज पैडिंग टू डिक्रीज द इम्पैक्ट फोर्स ऑन योर हैंड. क्यों? अगर डायरेक्टली कैच करे तो सडनली रुक जाता बॉल. अगर वही ग्लव्स रहे, बेसबॉल में जब कैच करते पैडेड ग्लव्स रहते. हाँ क्या? हाँ, क्रिकेट में इवन गोलकीपर भी यूज करता. समझ गए? हॉकी में, फुटबॉल में सब लोग पैड्स पहनते. समझ गए? क्या होता? कांटेक्ट टाइम थोड़ा इंक्रीज होता, क्योंकि सडनली रुकता नहीं बॉल, थोड़ा दबने तक टाइम बढ़ जाता पैडिंग. समझ गए? एंड वन मोर प्लेस वेयर दे यूज दिस प्रिंसिपल टू रिड्यूस फोर्स ऑन पीपल और एनीवन इज इन शॉक एब्जॉर्बर्स. सब ठीक है. शॉक एब्जॉर्बर में स्प्रिंग रहता. तो गाड़ी अगर गिर गई सडनली, समझ गए? सडनली गाड़ी गड्ढे में गिर गई या कुछ स्पीड ब्रेकर आ गया, तो जो इम्पैक्ट टाइम रहता बिकॉज ऑफ दैट शॉक एब्जॉर्ब स्प्रिंग, वो क्या हो जाता? बढ़ जाता टाइम. तो आप पे इतना फोर्स नहीं लगता, तो थोड़ा टाइम बढ़ाता स्प्रिंग. समझ गए? सो इट विल exert lower force on the person who is sitting in the vehicle. तो शॉक एब्जॉर्बर्स का भी प्रिंसिपल यही है. क्या है प्रिंसिपल? कुछ नहीं, टाइम बढ़ाओ, फोर्स कम करो. क्यों? क्योंकि चेंज इन मोमेंटम तो इतना ही है, बॉल को तो रोकना ही है. समझ गए? तो चेंज इन मोमेंटम तो बदलता नहीं, ये तो चेंज नहीं होता. अब फोर्स को डिक्रीज करने के लिए एक ही तरीका है, टाइम बढ़ाओ. ठीक है? सो दैट इज दी प्रिंसिपल बिहाइंड ऑल दोस थिंग्स. क्लियर? समझ में आई बात? See, they can use
See, in cricket or baseball, they can use metal bats also if they want. Aluminium bats. But use नहीं करते aluminium bats. Reason क्या है? रीजन क्या है? बहुत सारे रीजंस है. एक रीजन ये है कि बॉल खराब हो जाता. दूसरा रीजन क्या है? ज्यादा फोर्स ज्यादा लगता हाथ पे, शॉक लगता हाथ पे. क्यों? मेटल जो है ना ज्यादा दबता नहीं. अगर वही वुडन रहा तो दब जाता ना. दब जाने से क्या होता, थोड़ा इम्पैक्ट का फोर्स कम लगता. ठीक है. तो एवरी टाइम सम पर्सन हिट्स द बॉल, द बैट इट चेंजेस इट्स शेप. समझ गए? दब जाता बैट. ठीक है. हाँ, दब जाता. अगर गौर से देखे तो दब जाता. स्लो मोशन वीडियोस कुछ भी देखे तो दब जाता. समझ में आया? क्लियर? ओके. एनीवे, टाइम क्या हुआ? स्टार्ट कब हुई? 2:45 पे स्टार्ट हुई. 2 o'clock. ओके. एनीवे, ठीक है. ये पुलिस का प्रॉब्लम देखो. ये पुली पे जो पुली ऊपर फिक्स्ड है, समझ गए? यहाँ पे एक स्ट्रिंग लगी हुई है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग लगी हुई है. ठीक है. ये पुली फिक्स्ड है. दिस इज अ फिक्स्ड पुली. व्हाई इट इज फिक्स्ड पुली? बिकॉज इट विल नॉट मूव फ्रॉम इट्स प्लेस. इट विल नॉट मूव फ्रॉम इट्स प्लेस. ठीक है. Now there is a block attached here. There is another block attached here. समझ गए? इसका मास m1 है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है. Now obviously we can just guess that m2 will come down and m1 will go up. That is obvious, na? So now our aim is to find two things. What is the acceleration of these blocks and what is the tension in the string? What is the tension in the string? Now I will assume that acceleration of this block is a downward. I will assume that acceleration of this block is a downwards. So what will be the acceleration of this block? कितना? a ही रहेगा. इक्वल रहेगा. इक्वल क्यों रहेगा? क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है ना. ये जितना नीचे आएगा वो उतना ऊपर जाएगा. देयर इज नो कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन हियर. सिंपल कनेक्शन है. एक ही स्ट्रिंग है, एक नीचे जा रहा, एक ब्लॉक एक ऊपर जा रहा. तो ये जितना नीचे जाएगा वो उतना ही ऊपर जाएगा. ये जितनी वेलोसिटी से नीचे जाएगा वो उतनी वेलोसिटी से ऊपर आएगा. ये जितने एक्सेलरेशन से नीचे आएगा वो उतने एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा. समझ में आई बात? अच्छा. One more thing you need to remember is whenever you have a massless pulley, the tension in any string will be same anywhere. अगर एक ही स्ट्रिंग है उसमें टेंशन कितना रहेगा? एक जगह T है तो हर जगह T रहेगा. तो इस पुली में टेंशन क्या लेंगे? T. तो I'll write T here. T. अगर इधर T है तो इधर भी T रहेगा क्योंकि वो सेम स्ट्रिंग है. रीजन क्या है? मैं रीजन बोलता हूँ. इसका भी टी है. पुली जब रोटेट हो रही तो उस पर टॉर्क लगाना पड़ता अगर उस पर मास रहा तो. मगर उस पर मास नहीं रहा तो उस पर टॉर्क लगाने की जरूरत नहीं. एक्चुअली अगर उसका मास जीरो रहा तो उस पर जीरो टॉर्क लगता. समझ गए? तो उस पर क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल रहना. तो क्लॉकवाइज का टेंशन और एंटी क्लॉकवाइज का टेंशन भी इक्वल रहता. तो इधर टी रहा तो इधर भी टी रहता. अच्छा, और एक बात, जो ऊपर वाला स्ट्रिंग है व्हाइट कलर का उसमें टेंशन कितना रहता? इसका टेंशन कितना रहता? इसका टेंशन टी डैश लेंगे. क्यों लिया टी डैश और टी प्राइम? क्योंकि अलग स्ट्रिंग है तो अलग टेंशन होगा. ओके, समझ में आई बात? नाउ सी, ये जो पॉइंट है, ये जो पुली है, पुली का मास क्या है? जीरो है. पुली का मास क्या है? जीरो है. और न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता? सेकंड लॉ क्या बोलता? एफ नेट इक्वल्स टू एम ए. है क्या नहीं? एफ नेट इक्वल्स टू एम ए. समझ में आई बात? तो एफ नेट ये पुली पे कितना लग रहा है? बोलो जल्दी. व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पुली? टी डैश ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा.
-2t नीचे की तरफ ऐड कर रहा, इक्वल टू मासलेस पुली है ना, मासलेस पुली है तो 0। इनफैक्ट अगर पुली मूव भी हो रही, एक्सेलरेशन भी है अगर पुली का, तो भी 0 ही लेना है आपको। क्यों? क्योंकि उसका मास 0 है। वेदर यू हैव ए मूविंग पुली और ए फिक्स पुली, नीचे का टेंशन और नीचे जो टेंशन ऐड कर रहा, ऊपर जो टेंशन ऐड कर रहा, दोनों इक्वल रहना, दोनों क्या रहना, इक्वल रहना। तो यहाँ पे क्या है कंक्लूजन? वेरी गुड, बोलो जल्दी बोलो। 2t, t डैश इक्वल्स टू 2t। आ गया? वही बोले आप, डायरेक्टली भी गेस कर सकते हैं मगर हम लोग प्रूव करेंगे यहाँ पे, ठीक है? बराबर। तो t डैश इज इक्वल टू 2t आ गया। अच्छा, नेक्स्ट अब अपन एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। कैसा फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन, बोलो? फ्री बॉडी डायग्राम, बोलो। ये जो एक्सेलरेशन है मासेस का, वो हम लोग थोड़ा बाजू में लिख लेंगे। ये m1 है, ये m2 है, ये एक्सेलरेशन बाजू लिख लिया, ये एक्सेलरेशन भी बाजू में लिख लिया, ठीक है? अब इसमें वेट कितना ऐड करता? m1 जी, m1 जी, और इस पे कितना ऐड करता वेट? m2 जी। समझ गए? अब फ्री बॉडी डायग्राम देखो, ब्लॉक, फर्स्ट ब्लॉक का, मतलब ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, उधर ही देख लो। तो न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करो फिर से। एफ नेट इक्वल्स टू एम ए, एफ क्या है m1 पे, बोलो जल्दी। ए के साथ का पॉजिटिव, ए के अगेंस्ट का नेगेटिव। ए के साथ क्या है? टेंशन है, ऊपर टेंशन खींच रहा, तो T माइनस m1 जी इक्वल्स टू m1 A, m1 A। कौन सा 0? कौन बोले? कौन बोले? मास पुल्ली का 0 है, ब्लॉक का थोड़ी ना है। ब्लॉक का दिया ना मास। हाँ, तो दिस इज फॉर ब्लॉक m1। ब्लॉक m2 को देखो क्या था? नहीं, ए के साथ का पॉजिटिव, ए के साथ का पॉजिटिव, m2 जी माइनस टी इक्वल्स टू m2 है। समझ गए? अब ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ऐड करो। ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। अगर ऐड कर दिए दोनों इक्वेशंस, क्या आता? टी कैंसिल हो जाता, तो क्या आता बोलो? m2 जी माइनस m1 है इक्वल्स टू m1 है m2 है। समझ गए? क्लियर? तो a इक्वल टू आ गया, क्या है? a इक्वल्स टू m2 माइनस m1 बाय m2 प्लस m1 इंटू जी। समझ में आया? लिखा ना, लिखा ना? अच्छा अच्छा, वहां पे है। बराबर ना? अब टेंशन मालूम करने के लिए क्या करना? टू फाइंड टेंशन, क्या था बोलो? अगर ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, हाँ, फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, टी माइनस m1 जी इक्वल्स टू m1 ए की जगह क्या डालते हैं?
बाय तो टी क्या आता बोलो? M1 m1g प्लस मल्टीप्लाई कर दो m1 m2 माइनस m1 स्क्वायर बाय plus m1 प्लस m2 इंटू जी। समझ गए? जी कॉमन ले लो, क्या था? हाँ फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो m1 स्क्वायर प्लस m1 m2 प्लस m1 m2 माइनस m1 स्क्वायर बाय m1 प्लस m2। ये इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ गया। नीचे तो लिखना है ना पूरा, एलसीएम लिया तो लिखना है ना ये। तो क्या था बोलो? याद रखना इजी है टी इक्वल्स टू 2m1 m2 बाय हाँ हाँ आ गया। एक्चुअली ये दो टर्म्स याद रखना आप लोग, और याद रखना इजी है क्योंकि मैं कल और भी एग्जांपल्स कराता हूँ जिसमें आपको पैटर्न समझ में आ जाता, हिस्सा क्या है समझ में आ जाता। इनफैक्ट मैं अभी बता देता हूँ क्या 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 बोले? क्या हुआ माँ बोलो? क्लास एक मिनट, एक मिनट हो गया। अगर ऐसा है देखो, अगर सिचुएशन ऐसा है ना, ठीक है एक काम करेंगे कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? नहीं अगर ब्लॉक इधर एक रखे इधर एक रखे वो कल करेंगे, ठीक है? अलग अलग पुलिस के क्या क्या सिचुएशंस आते हैं वो पूरे कल लिखेंगे हम लोग, ठीक है? रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो जल्दी, ये तो 4-5 घंटे रिकॉर्ड हो गया।